counted as attempted problem. If the problem is not struck off, it will be counted if comes in sequential order. अगर वो sequential order में आती है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना वहां पे. तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी आपको पेपर में. यू विल फाइंड द एग्जैक्ट स्टेटमेंट बीइंग मेंशन्ड देयर. Point repeat once, sir. Which point, Rahul? Which point is to be repeated? ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है बोर्ड पे. If you attempt and then struck off, if you have struck off, then why it will be counted? अरे आपने लिख दिया प्रॉब्लम का आंसर, फिर आपने उसको काट दिया. काट दिया इसका मतलब तो आपने छोड़ दिया ना उसे, स्ट्रक ऑफ कर दिया ना. तो पहली बात तो ये बताओ, आपने लिखा फिर स्ट्रक क्यों किया? Why you have wasted the time? आपने ये प्रॉब्लम लिखने में टाइम क्यों वेस्ट किया? अभी मैंने क्या बोला, शुरू के 5 से 10 मिनट आप कहां इन्वेस्ट करोगे? शुरू के 5 से 10 मिनट आप इन्वेस्ट करोगे ये पता करने में कौन सी प्रॉब्लम करनी है, ताकि ये ब्लंडर नहीं हो. वहां पे एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं. एंड इफ यू इन्वेस्ट 15 to 20 मिनट्स इन अ प्रॉब्लम विच यू आर सकिंग ऑफ, इसका मतलब ये है कि आप 15 से 20 मिनट वेस्ट कर रहे हो वहां पे. तो इसलिए शुरू के 5 मिनट इन्वेस्ट करो ये पता करने में कौन सी प्रॉब्लम करनी है, ताकि ये चीज नहीं हो वहां पे. थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया तो क्वेश्चन भी कट करना है, क्वेश्चन कट करना है. अगर आपने अटेम्प्ट किया और कट किया, आपने खाली छोड़ दिया, तब भी आपको कट करना है इसको. तो ये देखो मेंशन्ड है यहाँ पे, अनलेस स्ट्रक ऑफ. जब तक आप उसको स्ट्रक ऑफ नहीं करोगे, इट विल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. तो बहुत छोटी सी बात है, पर अगर ध्यान नहीं रखा या मतलब नहीं पता हुआ, एक पूरा सवाल गायब हो जाएगा आपका वहां पे. यानी 60 मार्क्स विल बी गॉन ऑफ. इवन if you do not put a single mark with a pen on the space provided for answer, still do we need to strike off? Yes, you need to strike off. Even if you don't write, even if you don't place this point also, you have to strike off. Got the point? Chaliye. Now the basic point of discussion. Your paper will consist of two types of question. Your paper will consist of two types of question, numerical and theoretical. Your paper will consist of two types of question, numerical and theoretical. Now the point is, which problem is to be decided? So according to me, and in general, prefer numericals over theoretical problems. Numericals को prefer करना theory के ऊपर. Reason being, if you attempt your numerical correctly, probability is here you will get full marks. But even if you attempt the theoretical problem correctly, probability is you will never get a full mark. आपको कभी full marks नहीं देगा वो. So always prefer numerical over the theoretical portion. First question in both sections is compulsory. Yes. First problem in both the sections is compulsory. In both the sections, first problem will be compulsory. It means problem number 1 and problem number 5 is compulsory. While writing main exam, many times we are unable to get the real meaning of explain, illustrate, examine your opinion, etc. What should we write the same? I'll come to this point. Gunjan Kripal, I'll come to this point. What is the meaning of this? So your paper will consist of two type of questions, numerical and theoretical. Prefer numerical over theoretical until or unless आपको numerical आता ही नहीं है. तो ये मत बोलना सर आपने तो बोला था numerical prefer करो, मेरे को numerical आते ही नहीं है तो मैंने सवाल ही नहीं किया कोई सा भी. तो ऐसा नहीं करना. तो अगर numerical और theoretical में से numerical आता है तो पहले numerical करेंगे, उसके बाद theoretical करेंगे. Then we'll go for the theoretical problem. Now how to attempt a numerical problem? Again, there are two candidates X, candidate Y. Both have solved numerical problem, same numerical problem. Both have got the exact result. दोनों ने exact result निकाल के भी दिया. Problem was of 10 marks. एक को 10 में से 10 मिल गए, एक को मिले 8 out of 10. तो दो कैंडिडेट हैं, दोनों ने सेम न्यूमेरिकल किया, सेम मार्क्स का, आंसर भी सेम आया, मार्क्स अलग अलग मिलेंगे उनको. क्यों? इसको करने में भी एक टेक्निक होती है. There is also a technique to attempt the numerical problems in your examination. अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हुए? फर्स्ट, राइट ऑल द गिवन डाटा. जो भी गिवन डाटा है उसको आप मेंशन करोगे एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में नहीं. डोंट राइट इन वर्टिकल फॉर्म, राइट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जगह नहीं है हमारे पास. बट यू हैव टू मेंशन गिवन डाटा. इससे एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आपको सवाल समझ में आया है. दिस गिवन डाटा गिव्स एन इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो पहली चीज, आपको डाटा जो दिया हुआ है वो मेंशन करना है. नेक्स्ट, यू हैव टू डिफाइन द सिंबल यूज्ड. आपको जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो डिफाइन करना है, अनलेस और अनटिल वो स्टैंडर्ड सिंबल हो. तो अगर आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम में, आप उसको डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन दैट.
नेक्स्ट, राइट ऑल द assumptions यूज्ड। अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितनी भी assumptions हैं आप शुरू में मेंशन करोगे। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल, कोई सा भी टॉपिक उठा लो सिविल का, रेफर एनी टॉपिक। लेट सपोज यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रॉब्लम ऑन डार्सीज लॉ। यू विल राइट द assumption ऑफ डार्सीज लॉ दैट सॉइल इज सैचुरेटेड, फ्लो इज लेमिनार। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी वहां पे, यू हैव टू मेंशन दैट। नेक्स्ट, डू नॉट बेस ऑन यूनिट्स। यूनिट्स में गलती नहीं करनी है आपको। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द यूनिट्स। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग। आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा जो आप यूज कर रहे हो। तो आप बोलोगे एज पर डार्सीज लॉ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यू हैव टू मेंशन इट। तो हम सारी गिवन डेटा को लिखेंगे, हम अपने सिंबल्स को डिफाइन करेंगे। आई डिफाइन दी सिंबल्स, I'll write the assumptions used, I'll write the expression means formula with the help of which problem will be solved। तो कैंडिडेट एक्स ने ये सारी चीजें करी थी। ऑल दीज पॉइंट्स वर टेकन प्रॉपर केयर बाय कैंडिडेट एक्स। कैंडिडेट वाई ने क्या किया, गिवन डेटा नहीं लिखा, assumptions नहीं लिखी, अपना एक्सप्रेशन लगाया v इक्वल्स टू के आई और आंसर निकाल के दे आया। आंसर तो आ गया दोनों का, पर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। रीजन बीइंग, इफ यू आर attempting the same problem, you are attempting the same problem, कैंडिडेट एक्स ने इतना एफर्ट लगाया है उसके अंदर और आपने ये सारी चीजें स्किप कर दी हैं। सो whenever you will attempt a numerical problem, take proper care, ये सारे पॉइंट्स वहां पे आप इंश्योर करो। लास्ट, अपना आंसर निकालने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। लास्ट, अपना आंसर निकालने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल निकालते हैं, आपने कैलकुलेट किया चेंज इन हाइट कम्स आउट टू बी -2 mm। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -2। आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 2 mm। तो आप लास्ट में एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को कि जो हाइट है, किसी भी चीज की हाइट है, वो 2 mm क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो इन द लास्ट यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो। दिस विल मेक योर आंसर कंप्लीट। ये आपको अपने सवाल का आंसर कंप्लीट करके देगा। हाँ, इतना टाइम मिलता है सारी चीजें करने के लिए, और अगर आपको ये टाइम सफिशिएंट नहीं लग रहा, इसका मतलब आपकी अपनी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस कर रहे हो, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सो वॉट एवर टेस्ट यू विल गिव फ्रॉम नाउ, मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को इंश्योर कर रहे हो, यू आर इंश्योरिंग ऑल दिस। दूसरी चीज, अगर आप इन चीजों को इंश्योर नहीं कर रहे हो सकता है एक सवाल और कर लो। अगर आप इन सारी चीजों को यूज नहीं कर रहे हो सकता है एक सवाल आप और कर लो। इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम ऑफ 240 मार्क्स, यू अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम ऑफ 280 मार्क्स। पर आपको 240 में से 210 मिल जाएंगे, 280 में से आपको 180 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप ये बोल रहे हो कि टाइम मिलेगा इतना, नो इशू। अगर इन चीजों को करने में टाइम लग भी जाता है, आपको इसका रिटर्न मिलेगा वहां पे, यू विल गेट द रिटर्न फॉर दिस। तो इस चीज में मत परेशान होना कि इन चीजों के लिए टाइम होता है या नहीं होता। पर क्वेश्चन कितना टाइम होता है मैंने बताया पीछे आपको, आई गिवन द एग्जांपल, मैंने पूरी डाटा दिया पीछे आपको कि पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा आपको। ये वीडियो हमेशा यही रहेगी, यू कैन अगेन सी द वीडियो ऑल्सो। आप सारी वीडियो वापस दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं थ्योरी प्रॉब्लम्स की। तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि थ्योरी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है हमें। इन थ्योरी प्रॉब्लम फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज आस्क्ड। थ्योरी प्रॉब्लम में आपको एनालाइज करना पड़ेगा पूछा क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट डिफाइन लिक्विफेक्शन, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, इन व्हाट कंडीशन लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस। In what condition liquefaction takes place। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों प्रॉब्लम तो सेम है, लिक्विफेक्शन ही तो पूछी है। पहला प्रॉब्लम डिफाइन लिक्विफेक्शन, दूसरा प्रॉब्लम इन व्हाट कंडीशन लिक्विफेक्शन टेक्स प्लेस। दो अलग अलग सवाल ही है। वर्ड भले ही कॉमन है दोनों के अंदर, इवन इफ द वर्ड इज कॉमन, लिक्विफेक्शन इन टू प्रॉब्लम्स, बट द मेथड टू राइट द आंसर इन बोथ द प्रॉब्लम्स विल बी डिफरेंट। तो जैसे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली वैसा ही आप लिखोगे, आप उसके अलावा और कुछ नहीं लिखोगे। सो योर वर्ड्स शुड बी लिमिटेड इन सच अ वे इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। मोर ओवर, इट शुड नॉट